Assalamualaikum dear students. Hope you are fine. So as you see here, I'm presented one more lecture on the board that is under the title of Climatic Conditions in January of continent of continent Africa. So in earlier class, I discussed with you the climatic condition of continent in the July. So at that time, this there is the amazing point that is the climate of continent is reverse. Southern part of the continent has the opposite climate that of the northern part of the continent. This whole continent is situated in the both northern tropical region and the southern tropical region, and this continent has the area above the equator that is known as the northern tropical region and southern tropical region. When it is summer in the northern tropical region, yeah, northern part of continent, so that time is the July month, and it is the opposite climate in the southern part of this continent. So the reason I already discussed with you, that is the when the oscillation of sun's rays, and when the sun's rays are the angle of incidence of the sun's rays is perpendicular at the tropic of Cancer. So angle of incidence when forms with the tropic of Cancer 90 degrees, so at that time there is the huge amount of insolation available this northern part of this continent. So it is the summer, and very less amount of insolation, and due to slanting rays, and the angle of incidence is not this 90 degree or so right angle, they do not strike at the right angle. So the reason that is that this southern part receives the very low amount of insolation. That is why this has the opposite climate as compared to the as related to the northern tropical region of the continent. So when we see the climatic conditions in January, now we are going to discuss in the month of January what are the climatic conditions found in this whole continent. So again, I represented here, that is there is the reverse of the climate which you feel, which you experience in the July month. So it is now that is the summers in this southern tropical region, and it is the winters in the northern tropical region. So the climatic conditions are reversed in January. The sun shines. Why they reverses? Now the oscillation of sun, shift of sun's radiation, just sun's radiation, shift of sun's radiation is perpendicular on the tropic of Cancer, that is the 23 degree and half. यानी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वहां पे आप देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री फॉर्म होता है. अब सनस रेज आप देखो ये शिफ्ट होते हैं, क्योंकि ये शिफ्ट कैसे होता है, ऑसिलेशन कैसे आता है सनस रेज में. सो इट इज बिकॉज ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ. सो बिकॉज ऑफ दिस रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, नाउ देयर इज द शिफ्ट ऑफ दिस angle of incidence ray which was earlier on the tropic of Cancer. Now in the month of January, it is the angle of incidence forms at the tropic of Cancer, and that is the why this area, this southern tropical region, receives the large amount of insolation, and because the sun's rays are vertically over the tropic of Cancer, that is why it is receives the huge amount of insolation, that is 23.5 degrees south. So because of this high temperature, now one more feature forms, one more character develops, that is that because of high insolation in the southern region and low insolation in the northern region, so reverse climates are found. But the one more thing, that is there develops a low pressure belt in the southern part of this continent. So why low pressure? There is the pressure and temperature are inversely proportional. That is the temperature and pressure are inversely this proportional. When the rise in temperature, the air pressure decreases, or we can say when there is the increase increase in temperature and the pressure decrease, when there is decrease in temperature and the air pressure, atmospheric pressure increases. So you see in the January, the temperature increases in the southern part of the continent, tropic of Cancer, and the air got the kinetic energy, and this got this because of high insolation, and the air rises up, and this forms the low pressure along this belt. So
because of this low pressure develops, and there is a very little amount of insolation on the northern part of this continent, so there develops a high pressure. So there is the high pressure as related to this southern part of continent. Why? Because of this insolation, because of this temperature, because of this temperature is the different at the northern and the southern part of this continent. So because of this forms the low pressure and high pressure belt, so it attract the winds. So the winds blow from this high pressure northern tropical region blow towards the southern tropical region. जो winds होते हैं वो blow होते हैं southward की तरफ, and that winds are known as the southeast monsoon winds या southeast trade wind. जो southeast trade winds होते हैं, so you know there is the winds permanent winds that are the this south easterlies and these westerlies. जो easterlies होते हैं westerlies, so यहाँ पे आप देखो लो प्रेशर होते हैं, तो ये ईस्टर्न विंड्स ये आप देखो यहाँ साउथ ईस्ट से आते हैं, तो ये ईस्टर्लीज, इन्हीं को हम बोलते हैं ईस्टर्लीज। ये ईस्टर्लीज ब्लो होते हैं टुवर्ड्स दिस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्यों ब्लो होते हैं ये विंड्स यहाँ से? क्योंकि इस रीजन में आपको पता नॉर्थ ऑफ इक्वेटर से, ये नॉर्थ ऑफ इक्वेटर इस रीजन में आप देखो दैट इज द हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर डेवलप ओवर द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट एंड अलोंग द इंडियन ओशन। आप देखो इंडियन ओशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उसका पार्ट है, तो उस इंडियन ओशन जो अफ्रीका के नॉर्दर्न साइड में आप देखो यहाँ से इंडियन ओशन है, तो उस इंडियन ओशन पे भी आप देखो हाई प्रेशर होता है एज कंपेयर टू एज रिलेटेड टू दिस साउदर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। सो विंड्स ब्लो फ्रॉम दैट दिस हाई प्रेशर टुवर्ड्स द लो प्रेशर यानी साउदर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट। सो दीज winds which blow from the high pressure under the name of eastern winds, easterly winds. So because they bring also moisture, these winds also travel over the Indian Ocean. वो इंडियन ओशन से होके गुजर के आती है, तो इंडियन ओशन में वो मॉइस्चर कलेक्ट कर रहे हैं, ह्यूमिडिटी कलेक्ट कर रहे हैं, तो ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर कलेक्ट करने के बाद आप देखो वो आगे जाके अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट को स्ट्राइक कर रहे हैं। तो ये साउथ ईस्ट विंड्स जो यहाँ इंडियन ओशन से ब्लो होके इस हाई प्रेशर एरिया से आप देखो इस लो प्रेशर एरिया की तरफ आते हैं। यहाँ पे आपको पता है हाई प्रेशर एरिया होता है जनवरी में और यहाँ लो प्रेशर होता है, तो इस हाई प्रेशर एरिया से यहाँ से लो प्रेशर की तरफ आते हैं, और ये आते आते आप देखो ये ब्लो ओवर द इंडियन ओशन होते हैं वाटर बॉडी, सो दे कलेक्ट द मॉइस्चर, दे गॉट द मॉइस्चर दीज विंड्स एंड दिस विंड्स व्हेन दिस स्ट्राइक द ईस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। सो जनरली आप देखो ईस्ट कोस्ट को पहले स्ट्राइक कर रहे हैं, तो यहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है, क्योंकि ये विंड जो आप देखो इनमें मॉइस्चर होता है, और स्ट्राइक करने के बाद आप देखो यहाँ सामने जो लैंड एलिवेटेड लैंड्स आते हैं, हाई लैंड्स आते हैं, उनके साथ स्ट्राइक करने के बाद ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है। तो यानी जो विंड्स रेनफॉल जो इन विंड्स में मॉइस्चर होता है वो प्रेसिपिटेट होते हैं ईस्ट कोस्ट पे, तो जिसकी वजह से आप देखो ये साउथ ईस्टर्लीज, ये विंड जनवरी में जो ये साउथ ईस्टर्ली विंड्स होते हैं ये रेनफॉल बरसाते हैं ईस्ट कोस्ट पे। आप देखो सो क्यों ईस्ट कोस्ट पे रेनफॉल होती है? क्योंकि एक्चुअली ये विंड्स आते हैं वहां पे हाई प्रेशर एरिया से आप देखो इस लो प्रेशर एरिया और ब्लो ओवर the Indian Ocean and strike the east coast of Africa and brings the heavy rainfall. This rainfall decreases westwards, लेकिन इसके आप देखो westwards में आप देखो rainfall decrease होगी, क्योंकि जो amount of moisture वो ईस्ट पे ही ज्यादा precipitate होता है, वो उसको फोर्स डाउन कर रहे हैं ईस्टर्न साइड, जो यहाँ सामने ज्यादा लैंड्स पहले आएंगे उन्हीं को आप देखो ज्यादा लैंड, और वेस्टवर्ड्स आप देखो वे ये दिस मॉइस्चर या हम देखेंगे प्रेसिपिटेशन लो होती है। तो एक और रीजन यहाँ पे होता है कि दैट इज द विंडवर्ड साइड एंड दिस लीवर्ड साइड, यानी आप देखो ईस्ट कोस्ट आप देखो विंडवर्ड साइड में आता है, तो ईस्ट कोस्ट पे ज्यादा रेनफॉल होती है, और वेस्ट कोस्ट आप देखो रेन शैडो और विंडवर्ड साइड में नहीं आता है, लीवर्ड साइड में आता है, तो जिसकी वजह से वहां प्रेसिपिटेशन यू नो दो जो साइड आप देखो विंडवर्ड साइड में होगा तो वो हैवी रेनफॉल रिसीव कर रहा है, एंड द रीजन व्हिच आर इन द रेन शैडो आर द लीवर्ड साइड दैट डजंट रिसीव्स द हाई रेनफॉल। सो सेम हियर द केस विद द अफ्रीका, ईस्ट कोस्ट लाइज इन द विंडवर्ड साइड, सो दैट इज व्हाई east coast receives much more rainfall as compared to westward. Westward also receives rainfall, but little rainfall decreases amount of precipitation, amount of moisture decreases towards the west coast because of east coast lies in windward side and this lies in the westward side. That is why there is the little rainfall on the west coast. So this rainfall, entire rainfall in the east coast is big in the January because of this eastern winds which blow over the Indian Ocean from high this pressure belt in the northern hemisphere, and this northern
हेमिस्फीयर में जो हाई प्रेशर डेवलप होता है, क्योंकि आप देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस वहां पे आप देखो परपेंडिकुलर नहीं होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आप देखो साउदर्न में परपेंडिकुलर होता है. सो बिकॉज ऑफ दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस, so that is why these winds blow over there, develops a very high pressure over the northern hemisphere along the Indian Ocean या northern hemisphere continents, and also in the northern part of continent. So this southern part of the continent, yeah, we can say that is the south of equator, particularly Tropic of Cancer has the very low pressure, and the winds from the northern hemisphere blow towards the southern hemisphere under the easterly winds, and these easterly winds also strike the eastern coast when they got the moisture from the Indian Ocean and brings the rainfall in the east coast. This is the climate of this Africa in the month of January. So this was the about this climatic condition of this Africa in the month of January. So that is also a reverse climate. You see, there was the summer in the July and the winter, and now there is in the January there is the winter in the northern and summer in the southern. And one more thing, there is a high pressure in the northern and low pressure in the southern in January, and this also reverse in the July. There is a very low pressure in the northern and this high pressure in the southern. And one more thing, that is the winds also change direction. So in the this January the winds blow from the northern hemisphere towards the southern because of this shifting of pressure belts, and in the July month there is also the winds blow from the southern towards the northern because westerlies cross the equator at that time. There develops a low pressure at the Tropic of Cancer, and same river happens when there is the angle of incidence 90 when sun shines vertically over the Tropic of Cancer, and this area develops a low pressure, and the now easterly winds crosses the equator. यानी यहाँ से जो easterly वो क्रॉस कर इक्वेटर साउथ को, तो जिसकी वजह से वो ये आप देखो चेंज भी हो रहा है विंटर समर या शिफ्ट ऑफ सनस दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस, और हम देखेंगे शिफ्ट ऑफ सनस रेडिएशन. जो सनस रेडिएशन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ एवरिका में आप देखो ऑसिलेट कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, तो इनकी वजह से, इसके ऑसिलेशन की वजह से देयर चेंजेस द प्रेशर बेल्ट, देयर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ विंड्स, एंड देयर चेंजेस द आल्सो दिस टेंपरेचर फ्रॉम नॉर्दर्न टू साउदर्न, एंड दिस इज द सेम इन द एंटायर वर्ल्ड. सो पूरी अर्थ पे ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पर्टिकुलर स्पेशल केस जो हमारा है दैट इज द अफ्रीका, इसका भी यही यहाँ पे सेम केस होता है. तो अगर हम देखेंगे हमारी कंट्री दैट इज द इंडिया में भी यही होता है कि आप देखो विंटर्स में आप देखो विंड्स आप देखो नॉर्थ से ब्लो होते हैं टुवर्ड्स इंडियन ओशन, लेकिन समर्स में आप देखो दैट इज जुलाई अगस्त जून में आप देखो विंड्स ब्लो होते हैं फ्रॉम इंडियन ओशन टुवर्ड्स द इंडिया. तो बिकॉज ऑफ शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट, सेम विद द अफ्रीका कॉन्टिनेंट. सो this topic was about this climatic condition in this January. So as you know, now one more topic, that is the climate and the natural vegetation of Africa, climatic region and natural vegetation regions of Africa. तो आप देखो जो entire Africa है, the large continent can be several climatic region. हम इसको बहुत सारे climatic regions में divide कर रहे हैं. बेटा आपको listen here, climatic region हम किसको बोल सकते हैं? यहाँ पे जो climatic region होते हैं, तो आप देखो this land mass of the continent is the diverse land mass. This is the large land mass, and this large land mass is situated, has the extension over the large number of latitudes. So because of extension in the large number of latitudes, on the every latitude there is not the same type of insolation. Every latitude not receives the same type of insolation throughout the year, and this every latitude has not the same type of pressure and many other things. तो आप देखो जो ये कॉन्टिनेंट होता है, जो ये लैंड मास होती है, या आप देखेंगे अर्थ की जो लैंड एरिया, ये आप देखो बहुत सारी लैटिट्यूड्स पे फैला हुआ है. तो एक ही लैटिट्यूड पे ना अगर ये होता तो शायद अगर ये कॉन्टिनेंट एक ही लैटिट्यूड, तो उसको सेम टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, लेकिन इसका एक्सटेंशन लार्ज नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स पे होता है. आप देखो ये अफ्रीका आप देखो यहाँ साउदर्न से लेके आप देखो नॉर्दर्न तक सिचुएटेड है. तो इसकी एक्सटेंशन की वजह से जो यहाँ पे आप देखो इंसुलेशन होगी इक्वेटर पे, वो यहाँ पे नहीं होगी, जो यहाँ पे होगी एक टाइम में वो यहाँ पे नहीं होगी, यहाँ
पे नहीं, हर जगह सेम इंसोलेशन नहीं होती है, हर जगह सेम प्रेशर डेवलप नहीं होता है, हर जगह अमाउंट ऑफ इंसोलेशन सेम नहीं पहुंचता है। तो जिसकी वजह से आप देखो यहाँ पे या हर जगह विंड्स, या उसके अलावा हम देखेंगे जो डायरेक्शन ऑफ विंड्स वो हर साइड में सेम नहीं होता है, और उसके अलावा ओशनिक करंट्स, विंड्स, ऑल्टीट्यूड हर जगह सेम नहीं होता। तो जिसकी वजह से आप देखो क्लाइमेट सेम नहीं होता। जैसे आपको एग्जांपल मैंने बोला कि दैट इज द देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ सुनो नियर द इक्वेटर, सो एज पर द लॉ, एज पर दिस latitudinal extension, there is no possibility of snow or glacier near the equator, but you see that is the Mount Kilimanjaro which is situated near the equator, but there is the snow. How it is possible? Because of altitude. This Kilimanjaro is the mount, it lies at the 5000 meters altitude, so because of this altitude, so अगर हम बात करेंगे, अगर इसका लैटिट्यूड के हिसाब से नहीं होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, लेकिन यहाँ स्नो बाउंडेड है क्योंकि altitude है। तो इसी तरफ आप देखो पूरी लैंड इस कॉन्टिनेंट की सेम altitude पे नहीं है, some areas are low lying areas, some are elevated, some are highlands and some areas near the coastal area। तो कोस्ट की वजह से आप देखो उनका क्लाइमेट अलग पड़ जाता है, altitude की वजह से लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन जो प्लेस लैटिट्यूड के इस बिटवीन है उसका क्लाइमेट अलग है, जो बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उनका क्लाइमेट अलग है, और जो पोलर में दैट हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट। सो दीज आर फैक्टर्स ऑलरेडी यू गॉट थ्रू दिस लेक्चर, दैट इज द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द क्लाइमेट, that was the one of the important, that is oceanic current, continental type, nearness to the sea, and one more thing, that was the altitude I already discussed with you. So these factors make us the different climatic region. So as you know, we are going to discuss climatic region. Climatic region क्या होता है? It is the area which have the same similar type of climate, यानी वो एरिया जिसका similar type of climate होगा तो उसको बोलते हैं हम climatic region। यानी किसी एरिया, किसी amount of land, किसी दिस फ्यू स्क्वायर किलोमीटर्स, 100 स्क्वायर, इसमें आप देखो सेम टाइप ऑफ क्लाइमेट मिल रहा है, तो ये बन गया एक क्लाइमेट रीजन। उसके बाद आप देखो नेक्स्ट फ्यू स्क्वायर किलोमीटर्स उनका क्लाइमेट दूसरा है, यानी इन 100 से नहीं मिल रहा। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल से समझाऊं, सपोज यहां से यहां तक, जिसको मैं थोड़ा यहां सर्कल से हाईलाइट करूंगा, तो आप सपोज इसका क्लाइमेट यहाँ पे हम देखेंगे हॉट एंड वेट है, हॉट एंड वेट है यहाँ, लेकिन ये हॉट एंड वेट इस एरिया में मिल रहा है आपको यहां से यहां तक, तो ये बन गए एक। लेकिन जब हम यहां से बाहर जाते इसी कॉन्टिनेंट में, तो यहां आपको हॉट एंड वेट नहीं मिल रहा है, यहां आपको कोल्ड क्लाइमेट मिल रहा है, कोल्ड एंड ड्राई। तो आप देखो इसका कोल्ड एंड ड्राई, इसको हॉट एंड वेट क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे कुछ फैक्टर्स होंगे जो इसको हॉट एंड वेट बनाते हैं, यहाँ पे आप देखो इसको फैक्टर्स होंगे जिसको कोल्ड है। ये इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन अलग है, इसका लैटिट्यूडनल स्ट्रेच अलग है। उसके बाद यहाँ ऑल्टीट्यूड, डायरेक्शन ऑफ विंड्स और ओशनिक करंट्स का इन्फ्लुएंस होगा, यहाँ पे भी ओशनिक करंट्स का इन्फ्लुएंस होगा। मे बी इनको कोल्ड, मे बी इनको दैट इज द कोल्ड टाइप ऑफ करंट्स होंगे, इनको हॉट टाइप ऑफ करंट्स अवेलेबल होंगे। तो यहाँ इस एरिया में, यहाँ से इस लाइन तक आप देखो इसको सेम टाइप, ये बन गया वन क्लाइमेटिक रीजन। द एरिया व्हिच हैव द सिमिलर टाइप ऑफ क्लाइमेटिक रीजन दैट इज नोन एज द क्लाइमेटिक रीजन, एंड दिस एरिया हैज द सिमिलर टाइप ऑफ क्लाइमेट। जो यहां से आप देखो, यहां से इस एरिया तक जिसको मैंने क्रॉस से यहां पे हाईलाइट किया, इसका आप देखो क्लाइमेटिक रीजन सेम है, लेकिन इस और इसका आपस में सेम नहीं है। इसका यहां से डिफरेंट होता है, यहां से यहां तक सेम है, उसके बाद डिफरेंट होता है, तो दैट इज द क्लाइमेटिक रीजन 1, दैट इज द क्लाइमेटिक रीजन 2। तो इसी तरफ आप देखो ये पूरी कॉन्टिनेंट की लैंड आई डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन। हम देखेंगे कितने फाउंड होंगे, ये जरूर नहीं यहाँ 4-5 होंगे, तो हम देखते हैं यहाँ से यहाँ तक कितना है, तो ये बन गए एक, यहाँ से बन गए एक, यहाँ से एक बन गए, यहाँ से एक बन गए। तो इसीलिए मैंने यहाँ लिखा दिस क्लाइमेटिक रीजन व्हिच हैव दिस सिमिलर टाइप ऑफ क्लाइमेटिक दिस दैट इज नोन एज ए क्लाइमेटिक रीजन। तो इसी तरह पूरी लैंड को हम देखते हैं कि 2-4 किस्म के क्लाइमेट्स पाए जाते हैं, एक रीजन में अलग पाए, तो दूसरे रीजन में अलग, तीसरे रीजन में अलग। तो इसकी वजह से आप देखो डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन पाए जाते हैं। तो लार्ज कॉन्टिनेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू सेवरल क्लाइमेट। जो ये लार्ज कॉन्टिनेंट है इसको हम सेवरल क्लाइमेटिक रीजन, क्योंकि इसका स्ट्रेच बहुत ज्यादा है, उसके ऑल्टीट्यूड फैक्टर है और उसके अलावा ओशनिक करंट्स या बाकी अदर फैक्टर्स है, तो जिसकी वजह से दिस लार्ज कॉन्टिनेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू सेवरल दिस क्लाइमेटिक रीजन्स। वन यानी ऐसे रीजन्स बनाए गए, ऐसे ऐसे स्मॉल एरियाज बनाए गए जिनका सिमिलर एरिया है, लेकिन इन सेवरल एरियाज का आपस में क्लाइमेट सेम नहीं है। ईच क्लाइमेटिक रीजन हैज इट्स ओन स्पेशल काइंड ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। यू नो दैट
that vegetation develops special type of vegetation या vegetation develops in different climate region is different. So if you have a desert type of climate, so there develops a desert vegetation. So desert type अगर climate होगा किसी जगह hot and dry होगा तो वहां पे this xerophytic plant सी develop होंगे, वहां पे आप देखो evergreen vegetation possible नहीं है. So each climate desert type is a one type of climatic region. So this entire desert type has this desert forests or we can के thorny forests, scrub forests होंगे, वहां पे evergreen नहीं होंगे. तो same again if you talk about the equatorial regions, I'm talking about the equatorial regions have the high amount of precipitation availability, high amount of insolation is available here. So this high amount of precipitation and high amount of this insolation, this thrives the vegetation well. So there is the possibility of evergreen forests. So ये evergreen forests आप देखो desert जहाँ पे hot and cold dry होगा वहां पे नहीं होंगे, तो वो एक climatic region जहाँ पे आप देखो hot and wet होगा वहां पे दूसरी type of vegetation होगी. तो जिस एरिया में आप देखो hot and wet, कितने एरिया पे ये hot and wet पाए जाए वो एक बन गए. उसके बाद hot and wet की कंडीशंस आपको नहीं मिल रहे, उसके बाद दूसरे क्लाइमेट, उसके बाद डेजर्ट मिल रही है, उसके बाद हॉट एंड ड्राई मिल रहा आपको. तो वो क्लाइमेट रीजन और ये हॉट एंड वेट एक बन गया, हॉट एंड ड्राई दूसरा बन गया, तो ये बन गए ना दो क्लाइमेटिक रीजन. तो ये इसी तरफ हम देखेंगे ईच क्लाइमेटिक रीजन हॉट एंड वेट में अलग किस्म के प्लांट्स वेजिटेशन फ्लोरोफाना डेवलप होगा और हॉट एंड ड्राई में अलग होगा. और इसी तरफ आप देखेंगे दिस कोल्ड में, ड्राई एंड कोल्ड में वहां पे आप देखो लाइकन्स एंड मोसेस यानी टंड्रा टाइप वेजिटेशन होगी. और उसके बाद आप देखो वेरी कोल्ड हाई एलिवेटेड एरियाज में आप देखो दैट इज द स्नो फॉरेस्ट्स और एल्पाइन वगैरह वेजिटेशन डेवलप होगी. इसी तरफ हम देखेंगे कोस्टल मार्श लैंड्स में आप देखो एवरग्रीन नहीं है, या उसके अलावा आप देखो माउंटेनियस पॉसिबल नहीं है, वहां पे मैनग्रोव और वी कैन से लिटोरल फॉरेस्ट्स वहां पे अवेलेबल होंगे. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेटिक. सो क्लाइमेटिक रीजन्स और एवरी क्लाइमेटिक रीजन में आप देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ दिस फॉरेस्ट्स और वी कैन से नेचुरल वेजिटेशन डेवलप हो रही है. तो यही मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया. ईच क्लाइमेटिक रीजन एज इट इज ओन स्पेशल, हर किसी क्लाइमेट में स्पेशल किस्म की जैसे आप देखो सुंदरबन आपको वेस्ट कोस्टल एरिया में मिलेगी, और इसी तरफ एल्पाइन, और उसके बाद हम देखेंगे एल्पाइन के अलावा पाइन एल्पाइन वगैरह ये आपको माउंटेनियस में मिलेंगे, कैक्टस वगैरह ये आपको दैट इज द डेजर्ट में मिलेंगे. उसके बाद साल्टीक आपको डेसिडियस में मिलेंगे, लो रेनफॉल एरिया में मिलेंगे जहां से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है, वहां पे आपको डेसिडियस. जहां आप देखो 100 से अबो यानी आई कैन से दैट इज द 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होगी, वहां पे एवरग्रीन मिलेंगे. तो क्लाइमेट डिफरेंट रीजन्स होते हैं, तो एवरी क्लाइमेट रीजन हैज अ डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन. So if we say that is this Africa is divided into several climatic regions. So one climatic region that is the equatorial type of climatic region. So पहला अगर हम देखेंगे equatorial type of क्लाइमेटिक रीजन. सो इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेटिक रीजन कहां पे पाया जाता है, ये हमने एक क्लाइमेटिक रीजन का नाम दिया है इक्वेटोरियल. सो एज पर द नेम इट मींस इट इज अराउंड द इक्वेटर. जो रीजन जो क्लाइमेट इक्वेटर के इर्द गिर्द पाया जाता है उसको बोला इक्वेटर. अफ्रीका भी आप देखो लैंड इक्वेटोरियल के इर्द गिर्द स्ट्रेच है, क्योंकि आप देखो अफ्रीका इक्वेटोरियल के इर्द गिर्द स्ट्रेच है, इसका कुछ साउथ ऑफ इक्वेटर और नॉर्थ ऑफ इक्वेटोरियल, तो इसका इक्वेटोरियल टाइप क्लाइमेट तो पॉसिबल होगा. दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन द lowlands on the either side of equator. यानी ये आप देखेंगे ये टाइप ऑफ क्लाइमेट हमें कहां पे मिल रहा है, lowlands में. lowlands in the either side of equator. तो आप देखो ये इक्वेटोरियल टाइप क्लाइमेट हमें ये दैट इज द इक्वेटर. सो ये इक्वेटर के इस साइड और इस साइड, इक्वेटर के साउथ में भी इक्वेटर के नॉर्थ में भी ये टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलेगा. तो सो बेटा आपको यहाँ पे याद रखना होगा ये जो इक्वेटोरियल क्लाइमेट हम देखेंगे, इक्वेटोरियल क्लाइमेट ये इक्वेटर के दोनों साइड में हमें मिल रहा है, चाहे ये नॉर्दर्न पार्ट हो या साउदर्न पार्ट हो, इसके इर्द गिर्द इक्वेटोरियल में मिलेगा. लेकिन लो लैंड्स में अगर इक्वेटोरियल पे हाई लैंड्स होंगे, माउंटेनियस लैंड्स होंगे, वहां पे इक्वेटोरियल नहीं मिलेगा. वहां पे दूसरा आप देखो इफेक्ट वहां दैट इज द ऑल्टीट्यूड होगा. जैसे माउंट किलिमंजारो दैट इज द इट इज द नियर इक्वेटर, बट देयर इज अ कोल्ड टाइप ऑफ क्लाइमेट आपको अवेलेबल होता है क्योंकि ऑल्टीट्यूड की वजह से. सो जितने भी लो लैंड्स इक्वेटर के इर्द गिर्द होते हैं जो जनरली हाई एलिवेटेड ऑल्टीट्यूड पे नहीं होते हैं, वहां पे आप देखो इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है. और ये कहां पाया जाता है, ये अराउंड द इक्वेटर होता है, इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ में पाया जाता है. अफ्रीका में भी आप देखो ये कहां पे पाया जाता है, ये
इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ ईस्ट कॉन्टिनेंट को इन द कॉन्गो बेसन, ये आपको कॉन्गो बेसन में, दैट इज द रिवर कॉन्गो, जो रिवर कॉन्गो है, जो एरिया हम देखेंगे कॉन्गो है, कॉन्गो बेसन में पाया जाता है। बेसन मींस एरिया ड्रेनेड बाय, अमाउंट ऑफ एरिया ड्रेनेड बाय द रिवर कॉन्गो। जो बेसन होता है एक्चुअली एरिया विच इज ड्रेनेड बाय द रिवर, दैट इज नोन एज द बेसन। सो बेसन के जो रिवर कॉन्गो है उसके बेसन में पाया जाता है। कोस्टल रीजनस अराउंड द गुल्फ ऑफ गोनिया, और उसके बाद हम देखेंगे गुल्फ ऑफ गोनिया, जो आपने कल पढ़ा है, गुल्फ ऑफ गोनिया, जहां से आप देखो विंड्स कलेक्ट कर रही है जुलाई में और वो रेनफॉल बरसा रही है दिस नॉर्दर्न पार्ट में, तो गुल्फ ऑफ गोनिया में। और उसके अलावा हम देखेंगे गुल्फ ऑफ गोनिया में एंड द कोस्टल कीनिया, और कीनिया आपको पता है ये अफ्रीकन कंट्री है कोई, लेकिन कीनिया के कोस्टल एरियाज में पाया जाता है कोस्टल कीनिया। द क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई टेम्परेचर 27 डिग्री, जो ये इस एरिया का क्लाइमेट होता है जनरली इट इज कैरेक्टर वाइज, it has the character, so this type of climate equal to 27 डिग्री टेम्परेचर। सो यहाँ पे जनरली 20, क्योंकि यहाँ आप देखो सन रेडिएशन परपेंडिकुलर होती है, सन रेडिएशन की आप देखो वो ज्यादा स्लांटिंग नहीं हो रही है, तो जिसकी वजह से आप देखो यहाँ 27 डिग्री थ्रू आउट द ईयर, यहाँ थ्रू आउट द ईयर आपको दैट इज द 27 डिग्री होता है। एंड द रेनफॉल इज 200 to 250 सेंटीमीटर, क्योंकि आप देखो इक्वेटर में टेम्परेचर हाई होता है तो वहां प्रेसिपिटेशन भी ज्यादा होती है, क्योंकि इक्वेटर के इर्द गिर्द आप देखो ओशन भी ज्यादा है। और वन मोर थिंग दैट इज द हाई इंसोलेशन इज अवेलेबल, दिस गॉट द इवापोरेशन एंड मोर वाटर्स इनटू द एटमॉस्फेयर। सो ह्यूमिडिटी, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर की वजह से यहाँ ज्यादा ह्यूमिड एटमॉस्फेयर होता है, तो जिसकी वजह से आप देखो एवरी आफ्टरनून एवरी दिस इवनिंग वहां पे रेनफॉल होती रहती है, यानी टोरेंटल रेन्स यहाँ पे ज्यादा होते हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पे आप देखो टेम्परेचर भी ज्यादा, क्योंकि इंसुलेशन कंटिन्यूअसली अवेलेबल होती है, सन ज्यादा दूर नहीं चला जाता। और दूसरा पॉइंट आप देखो 250 सेंटीमीटर रेनफॉल। देयर इज द हाई ह्यूमिडिटी ऑल थ्रू आउट द ईयर। अभी मैंने आपको लिखा है यहाँ पे देयर इज द हाई ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मींस अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर, यानी it is generally expressed in grams per kg of air, यानी कितने ग्राम्स पर kg of air में है, तो that is known as the humidity, that is known as absolute humidity। humidity means amount of moisture in the atmosphere। यहाँ एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर ज्यादा, आप देखो डेजर्ट्स में एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर ज्यादा नहीं होता, दो टेम्परेचर अवेलेबल, डेजर्ट्स में आप देखो टेम्परेचर अवेलेबल होता है लेकिन वहां वाटर बॉडी नहीं है, वहां इवापोरेशन नहीं है, वहां वेजिटेशन नहीं है, तो जिसकी वजह से वहां एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर नहीं होता है मॉइस्चर। तो इसी तरह आप देखो कोल्ड एरिया में भी आप देखो जनरली वहां पे ह्यूमिडिटी लो होती है, क्यों? बिकॉज वहां पे लो टेम्परेचर की वजह से यानी मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में नहीं चला जाता है, तो कुछ एरियाज में हाई ह्यूमिडिटी होती है, कुछ एरियाज में लो। तो ह्यूमिडिटी वहां पे हाई होगी जहां वाटर अवेलेबल होगा, वाटर बॉडी अवेलेबल होगा और टेम्परेचर अवेलेबल होगा। जहां वाटर बॉडी अवेलेबल होगी, टेम्परेचर नहीं होगा, तो लो ह्यूमिडिटी होगी। जहां ड्राई एरिया होगा, वाटर नहीं होगा और टेम्परेचर हाई होगा, वहां पे आप देखो ये हाई हुए। तो डेजर्ट्स में आप देखो पोलर एरिया में ह्यूमिडिटी लो होती है और इक्वेटोरियल में ज्यादा होती है, तो इसलिए इस एरिया में यहां थ्रू आउट द ईयर हाई ह्यूमिडिटी होती है, मींस एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होता है। देयर आर नो क्लियर मार्केट सीजन्स। आप देखो इस एरिया में, इस इक्वेटोरियल टाइप में आपको क्लियर, आपको यानी विंटर्स और समर्स में ज्यादा पहचान नहीं होगी, डिफरेंस फील नहीं होगी। जैसे आप देखो वी लिव इन द जम्मू एंड कश्मीर, आपको डिफरेंस होती है, यू कैन परसीव दिस डिफरेंस इन दिस समर एंड दिस विंटर सीजन। सो आप आसानी से आप देखो समर और विंटर सीजन में आप देखो नोटिस कर सकते हो डिफरेंस, बट इन द इक्वेटोरियल, अगर आप इक्वेटर के इर्द गिर्द यू कैन हार्डली, यानी आप हार्डली मुश्किल से आप देखो यानी डिफरेंस बिटवीन दिस समर एंड, क्योंकि यहाँ देखो समर्स और विंटर टेम्परेचर में ज्यादा चेंज नहीं थे। मैं नियर द इक्वेटर की बात कर रहा हूं, इक्वेटोरियल टाइप क्लाइमेट की बात कर रहा हूं। सो वहां पे आप देखो जनरली जो टेम्परेचर होता है, अगर समर्स में 30 होगा तो विंटर्स में आप देखो 27 होगा। ह्यूमिडिटी वहां पे भी होगी विंटर समर्स में, और उसके बाद मॉइस्चर वगैरह ये भी अवेलेबल होता है। तो यहां पे आप देखो चेंज, सीजनल चेंज ऑफ वाइड रेंज सीजनल चेंज ऑफ टेम्परेचर नहीं है। सो बिकॉज ऑफ दिस दैट वी कैन हार्डली फेल्ट द चेंज इन द सीजन्स। वहां आपको सीजन, अगर आप इंडिया की मैं बात करूं, इंडिया के आप देखो साउथ में आप जाओ, तमिलनाडु में जाओ,
आप देखो विंटर्स को फील नहीं कर पाओगे, आपको विंटर का मतलब वहां फील नहीं होगा। तो जब हमारे यहाँ विंटर्स होते हैं तो यहाँ पे आप देखो सीवियर कोल्ड होता है, तो उसकी वजह से हम समर्स और विंटर्स को फील करते हैं, आसानी उस सीजन को करते हैं। लेकिन वहां समर्स और विंटर टेम्परेचर में ज्यादा वेरिएशन नहीं होती है, तो बिकॉज ऑफ दिस वी कैन नॉट रिसीव, क्योंकि ये इक्वेटोरियल के नजदीक है। सो जितने भी एरियाज इक्वेटोरियल के नजदीक होते हैं, इक्वेटर के आसपास रहते हैं, या जहां इक्वेटोरियल टाइप क्लाइमेट जिसको बोलते हैं, वहां समर और विंटर सीजन को आप हार्डली फील कर सकते हो। तो यही पॉइंट मैंने यहाँ हाईलाइट किया है। सो that is the there is no this market season, वहां पे आप देखो क्लियरली मार्केट सीजन नहीं होती, जैसे हमारे यहाँ समर विंटर वगैरह होता है, आसानी से हम फील कर सकते हैं। सो मई के बाद आप देखो समर होता है, उसके बाद सितंबर अक्टूबर के बाद आप देखो दिस सॉरी नवंबर के विंटर आप क्लियरली फील कर सकते, लेकिन वहां पे नहीं, क्योंकि वहां पे चेंज टेम्परेचर ज्यादा नहीं आती है सीजन टू सीजन। देयर इज डेली ऑकरेंस ऑफ कन्वेंशनल रेनफॉल, सॉरी यहाँ पे आप देखो डेली कन्वेंशनल। सो कन्वेंशनल रेनफॉल किसको बोला जाता है? सो लिसन बेटा, कन्वेक्शनल रेनफॉल ये टाइप ऑफ रेनफॉल होता है, एक तो ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है और दूसरा टोरेंटल होता है, कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है। सो लिसन, जो ये कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है, जो भी आप देखो मॉइस्चर गर्मी की वजह से, टेम्परेचर की वजह से दिन भर ऊपर चला जाता है एटमॉस्फेयर में। सो बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर इन द डे, आप देखो इक्वेटोरियल टाइप में हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर होता है, डे में आप देखो हाई टेम्परेचर, तो दिन में इवापोरेशन बहुत ज्यादा होती है। तो इतनी ज्यादा इवापोरेशन दिन भर होती है, तो एटमॉस्फेयर बिकम्स द दिस सैचुरेटेड। यहाँ पे एटमॉस्फेयर सैचुरेटेड मींस यहाँ पे एटमॉस्फेयर फुल भर जाता है वाटर वेपर से। एटमॉस्फेयर हैज नो पोटेंशियल टू फुल टू टेक द मोर वाटर वेपर्स, यानी इतनी इवापोरेशन दिन भर होने के बाद एटमॉस्फेयर आप देखो इवनिंग के टाइम, आप देखो आफ्टरनून में आप देखो इसमें आप पोटेंशियल नहीं रहता है, जगह नहीं रहती है कि ये फर्दर वाटर वेपर्स को एक्यूमुलेट कर पाए। तो आप देखो दैट इज द सैचुरेटेड एटमॉस्फेयर। जब सैचुरेटेड एटमॉस्फेयर बन जाता है, तो यही आप देखो जो ये यहाँ पे आप देखो ये सैचुरेटेड होने के बाद आप देखो यहाँ जो मॉइस्चर होता है वो पोर डाउन होता है। तो जो ये दिन भर आप देखो एराइज होते हैं वाटर वेपर्स, और शाम के टाइम आप देखो नीचे ऊपर जाके ठंड हो जाएंगे, तो वहां नीचे प्रेसिपिटेट होते हैं, उसको बोलते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल। लेकिन जो रेनफॉल आप देखो किसी जगह विंड अपने साथ मॉइस्चर लाएगी, और चलते चलते आप देखो आगे जाके 100 ऑफ किलोमीटर्स वो माउंटेन के साथ स्ट्राइक करेगी, तो उसके बाद आप देखो वहां फॉल होगी, उसको बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। क्योंकि यहाँ जहां पे किसी हिल एलिवेटेड एरिया की वजह से विंड फ्लो हो रही है, विंड के साथ मॉइस्चर भी है, और विंड आगे आगे चल रही है, तो आगे जाने के बाद माउंटेन के साथ स्ट्राइक करने के बाद वहां रेनफॉल होती है, तो उसको बोलते हैं हम ओरोग्राफिक रेनफॉल। लेकिन जो दिन भर आप देखो वर्टिकली मॉइस्चर ऊपर चला जाएगा इक्वेटर के आसपास, सो वर्टिकली ऊपर जाने के बाद वहां ये ठंड हो जाता है और नीचे प्रेसिपिटेट होता है, तो उसको बोलते हैं हम कन्वेक्शनल रेनफॉल। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ओरोग्राफिक एज वेल एज द कन्वेक्शनल रेनफॉल। सो वन मोर थिंग, सो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ इक्वेटोरियल टाइप में कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है, और दैट इज one point, this type of rainfall is result is intense heating of land surface. सो ये रेनफॉल इसलिए होती है क्योंकि दिन में आप देखो इंटेंस हीटिंग ऑफ लैंड सरफेस। सो ड्यू टू इंटेंस इंसोलेशन, एज यू नो देयर इज द हाई इंसोलेशन अवेलेबल एट इक्वेटर। सो ड्यू टू दिस इंटेंस हीटिंग ऑफ दिस रेनफॉल रिजल्ट इज द हीटिंग ऑफ द लैंड सरफेस। जब लैंड सरफेस ज्यादा गर्म होती है, सो ड्यूरिंग द डे टाइम देयर इज अ लॉट ऑफ इवापोरेशन। सो बिकॉज ऑफ दिस इंटेंस हीटिंग ऑफ लैंड सरफेस एंड लॉट ऑफ इवापोरेशन, लॉट ऑफ मॉइस्चर इज transported into the carry into the atmosphere by afternoon when this it starts cooling. So at the elevation, when this moisture which is elevated, which is rising from the land, which is rising from the oceans, and when it rises, the because of this altitude, you know, the temperature decreases. So when it reaches the higher altitude, is this moisture in the atmosphere, and there it cools. So because you know at the higher there is a cooling effect, there is a decrease of temperature. So when this moisture which is carried from the land to the higher elevation, and this water vapor starts cools and condenses there, and you know this is the condensation takes place, and when this condensation takes place, this moisture pours down and falls rain, since it pours around 4 o'clock every day, it is known as the 4 o'clock showers. तो देखा गया आप देखो दिन भर एटमॉस्फेयर मॉइस्चर रिसीव कर रहा है, तो मॉइस्चर रिसीव करते करते आप देखो यही मॉइस्चर ऊपर चला जाता है, वहां ठंड होता है, क्योंकि आप देखो अल्टीट्यूड के ऊपर जाने से आप देखो टेम्परेचर ड्रॉप होता है, तो वहां ये ठंड होता है, कंडेंस होता है, और ये रेनफॉल अराउंड दिस 4 o'clock जनरली आप देखो
एक्सपेक्टेड जो होता है वो रो क्लॉक के इर्द गिर्द आप देखो ये प्रेसिपिटेट होता है इस इक्वेटोरियल टाइप में क्लाइमेट एवरी दिस डे ऐसा आपको फिनोमेना वहां पे मिलेगा एवरी आफ्टरनून के बाद यानी एवरी 4 o'clock के बाद आपको ऑलमोस्ट वहां पे प्रेसिपिटेशन मिलेगी क्योंकि ये दिन भर जो क्या मॉइस्चर होता है वो एटमॉस्फेयर पोर डाउन कर रहा है इंटेंसिटी की वजह से सो दिस आर नोन एज द 4 o'clock शावर्स इनको बोलते हैं हम 4 o'clock शावर्स ये अक्सर यहाँ पे इक्वेटोरियल टाइप में क्लाइमेट होता है हमारे यहाँ नहीं हमारे यहाँ आप देखो जो होते हैं पर्टिकुलर दिस सीजन होते हैं रेनफॉल के पर्टिकुलर सीजन होते हैं गर्मी के सर्दी के लेकिन यहाँ पे आप देखो एवरी आफ्टरनून में आप देखो जनरली आपको दिस रेनफॉल मिलेगी क्योंकि इसमें इंटेंस हीटिंग होती है इंटेंस हीटिंग की वजह से जो मॉइस्चर दिन भर कैरी किया गया एटमॉस्फेयर में वो पोर डाउन होता है जो वर्टिकली सो दैट इज नोन एज कन्वेक्शनल रेनफॉल यहाँ हर टाइम शाम के टाइम आसपास होती है तो दैट इज नोन एज द 4 o'clock shower सो दिस वाज द अबाउट द कॉन्टिनेंट अफ्रीका क्लाइमेटिक रीजन हम पढ़ रहे थे और नेचुरल वेजिटेशन पढ़ रहे थे उनमें हमने एक क्लाइमेटिक रीजन पढ़ा क्योंकि आई नो अफ्रीका इज डिवाइडेड इनटू सेवरल क्लाइमेटिक रीजन एंड आई एम highlighted about the one climatic region that is the equatorial type of climatic region so this type of climate generally found along the equator you know so that is why polar climate आपको polar में मिलेगा equatorial में equatorial ही में मिलेगा so इसमें characters क्या होते हैं 30 डिग्री टेम्परेचर एंड to this 27 डिग्री टेम्परेचर यही रहता है यहाँ पे चेंज नहीं होती है सीजन टू सीजन टेम्परेचर में और प्रेसिपिटेशन जो यहाँ होती है वो 200 to 250 सेंटीमीटर होती है और एवरी आफ्टरनून में यहाँ पे आप देखो कन्वेक्शनल रेनफॉल आपको मिलेगी वो क्यों मिलेगी क्योंकि टेम्परेचर हाई होता है थ्रू आउट दिस डे और शाम की टाइम ये प्रेसिपिटेशन डाउन होती है और वन मोर थिंग आप देखो इस टाइप ऑफ इस क्लाइमेट में आपको सबसे स्पेशल कैरेक्टर जो है कि यू कैन फील इन दैट हार्ड इज द डिफरेंस बिटवीन द सीजन यू कैन नॉट परसीव द डिफरेंस बिटवीन दिस विंटर समर स्प्रिंग सो हार्डली कैन फील बिकॉज देयर इज नो चेंज इन द वाइड चेंज इन दिस सीजनल टेम्परेचर्स एज इट इज फेल्ट इन द टेम्परेट एरिया और इन द पोलर एरिया सॉरी पर्टिकुलर इन द टेम्परेट एज इट इज फेल्ट इन हायर लैटिट्यूड जनरली हम टेम्परेट एरिया में आप देखो यू कैन फील the perceive the this experience the difference between the this season to season temperature but you cannot feel in the equatorial type of climate so this equatorial type of climate found in the Congo basin lowlands highlands में नहीं मिलेगा क्योंकि वहां altitude का इफेक्ट रह रहा है वहां कोल्ड रहेगा गुल्फ ऑफ बोनिया में आपको मिलेगा और कीनिया वगैरह के इर्द गिर्द आपको ये दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट रहेगा अफ्रीका में जो एक क्लाइमेटिक रीजन दैट इज द इक्वेटोरियल टाइप क्लाइमेट रीजन